ठीक है, we have started the recording. We have started the recording and we are doing question number 4. We are doing question number 4. If you want, you can click the photograph, image click कर सकते हैं. You can pause the video and write the question because you'll be requiring it. आपको question लगेगा कि आजाद who is in business of wholesaler sunflower oil is a client of your accounting firm. आपको CA बना दिया है. You are required to draw up his final account for the year ended 31st March 2005. K. Azad Capital, creditors for oil purchase, 12% security deposit from customers, creditor for expense, rent, salary and commission. Cash and bank देखो इसे combined दिया है. Then debtors, stock of oil, furniture less depreciation, advance rent, electric deposit, three-wheeler tempo van. आप स्क्रीनशॉट निकाल लो. You'll require the question here also. मैंने okay. Then summary of the rough cash book of K. Azad for March 5 is as follow. Cash sales, collection from debtors, payment to landlord, salaries, miscellaneous office expense, commission, personal income tax, transfer to FD, creditors for oil purchase. A scrutiny of other record gives you the following information. During the year, oil was purchased at 250 tins per month basis at a unit cost of 1,000. 5 tins were damaged in transit, in respect of which insurance claim has been preferred. Surveyors have since approved the claim at 80%. Damaged ones were sold for 1,500. That's included in the cash sale. 1 tin has been used up for personal consumption. Total number of tins sold during the year was 3,000 at a unit price of 1,750. Rent until 30 September was 6,000 per month and was increased thereafter by 1,000 per month. Additional advance rent of 2,000 was paid and this is included in the figure of payment to landlord. Provide depreciation at 10% and 25% of return on value of furniture and tempo. It is further noticed that customer has paid 10,000 on March 5 as security deposit by cash. One of the staff has defalcated. The claim against the insurance company is pending. You are requested to prepare final account for the year ended March 5. आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लगेगा. You can pause the video and write. Okay. हम लोग ने लाइन ड्रॉ कर दिया है. हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बनाने के लिए? फाइनल अकाउंट फॉर मार्च 5. हमको फाइनल अकाउंट पूछा है बट कन्वेंशनल ट्रेडिशनल ट्रायल बैलेंस नहीं दिया है. जब ट्रायल बैलेंस नहीं देते हैं एंड हमें फाइनल अकाउंट बनाना होता है, then that topic is known as account from incomplete record. कोई कोई लोग उसे सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, किसकी किसकी लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग? ओपनिंग बैलेंस शीट, BRBP, डेटा, क्रेडिटर, कैश बुक, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट. कोई बता सकते हैं ये प्रॉब्लम में मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइन क्यों नहीं ड्रॉ की है? ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइन क्यों नहीं ड्रॉ की है? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट डायरेक्टली दिया है. बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल के ट्रांजैक्शन नहीं है, सो ड्रॉ करेंगे तो भी ब्लैंक रहते हैं. कैश बुक आप ध्यान से देखेंगे, कैश एंड बैंक कंबाइन दिया है एंड बाद में भी कैश एंड बैंक कंबाइन दिया है. कहाँ भी कैश चेक की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कैश बुक एक सिंगल कॉलम है. ओके, सो देखिए हमारा लाइन है, हमने पहले ही ड्रॉ करके रख दिया है. ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट मिनिमम 10 लाइन, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट है, डेटा, क्रेडिटर एंड कैश बुक. ऑलराइट, जो लोग ने लाइन नहीं ड्रॉ किया दे नीड टू ड्रॉ फास्ट. सम कैसे स्टार्ट करते हैं समझने के लिए मैंने कैलेंडर पिक्चराइज करने को बोला है, जो जनवरी टू दिसंबर दिखता है. मेरा ईयर एंडिंग भले अप्रैल टू मार्च है, जन टू दिसंबर है, जुलाई टू जून है, फर्क नहीं पड़ता है. समझने के लिए जनवरी टू दिसंबर माने कैलेंडर. कैलेंडर में क्या दिखता है? सबसे पहले जनवरी मंथ दिखता है, तो उसे मैं बोलता हूँ ओपनिंग बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन. उसके बाद चलते चलते हम ड्यूरिंग द ईयर पर जाएंगे. सो आई से ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, लास्टली क्लोजिंग बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन. पूरा टॉपिक में दो ही रूल है, एक है रूल 1 एंड एक है रूल 2. जब तक रूल 1 रूल 2 सलामत है, हमारा सब हमेशा टैली होता है. अच्छा,
ऐसा क्या है ये दो रूल में? आंसर बहुत सिंपल है, वो आपको भी पता है दोनों रूल क्या है। रूल वन क्या है? वेरी सिंपल, दोज ट्रांजेक्शंस which come in the opening balance sheet bring down same side. रूल वन में लिखा है those transactions which come in the opening balance sheet bring down same side. तो पहला orally देख लेते हैं कहाँ आएगा। कैपिटल बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स अकाउंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर, सो लायबिलिटी में आ जाएगा। इनर कॉलम भी एडजस्टमेंट आगे, एंड क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस पीएनएल में आता है। लेट अस स्टार्ट। चलिए आप लोग भी स्टार्ट करो, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। चलिए सबसे पहला के आजाद कैपिटल, कैपिटल ओपनिंग, बाद में 1 2 3 4 5 लाइन छोड़ दो। कैपिटल, कैपिटल के बाद क्रेडिटर्स, rule number 1, those transactions which come in the opening balance sheet bring down same side. Capital, creditors, बाद में 12% सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर, वो भी लायबिलिटी में आ जाएगा। 12% security deposit from customers, इनर कॉलम में लिखते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट भी है ना आगे। उसके नीचे भी 1 2 3 लाइन छोड़ देते हैं। 12% सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स, ओपनिंग कैपिटल लिख दिया, क्रेडिटर्स अकाउंट का बैलेंस लिख दिया है, 12% सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स भी लिख दिया लायबिलिटी में। ऑलराइट, आगे क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस, हाँ ये दिखाओ, ये कहाँ आएगा? क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस इज नथिंग बट द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वो कहाँ दिया गया है? ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है। मार्च 5 इज लास्ट ईयर क्लोजिंग, करंट ईयर ओपनिंग, क्योंकि करंट अकाउंट तो फाइनल अकाउंट मार्च 5 चल रहा है। सो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ आएगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सोचो एक्सपेंसेस पीएनएल की आइटम है और क्रेडिट में दिया है, लायबिलिटी माने क्रेडिट दिया है। रूल नंबर 1, those transaction which come in the opening balance sheet bring down same side, तो क्रेडिट क्रेडिट में आना चाहिए। हाँ ऑपोजिट साइड लिखते हैं तो लेस हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग रेंट तो रेंट होता है, तो देखो मैं कैसे लिखता हूं, रेंट, जो भी रेंट का फिगर है यहां लिखेगा, फिर क्रेडिट क्रेडिट साइड, ऑपोजिट साइड लिखा तो लेस, लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। इसके नीचे भी 1 2 3 लाइन छोड़ना एडजस्टमेंट है। इसका मीनिंग क्या होता है? वेरी सिंपल, जितना भी रेंट का कैश और चेक दिया है, जितना भी करंट ईयर में रेंट और कैश चेक दिया है, उसमें से 6000 तो लास्ट ईयर का है, रिमेनिंग करंट ईयर का आएगा। वापस से ध्यान से देखना, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, इसके लिए ऐसा मत बोलना बैलेंस शीट में लिखो, बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग क्या फिगर आएगा ना। दैट मीन्स लास्ट ईयर का 6000 वो पेएबल, जो मैं करंट ईयर में पे करेगा। जितना भी करंट ईयर का कैश और चेक देता हूं तो इधर लिखेगा रेंट टू कैश। रूल नंबर 1, ब्रिंग डाउन सेम साइड, क्रेडिट क्रेडिट साइड में आएगा, ऑपोजिट साइड लिखा तो लेस। सेम वे कैन यू ट्राई सैलरी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या ट्राई कर सकते हैं? सेम सेम लॉजिक, जितना भी सैलरीज का कैश और चेक देगा वो तो मैं यहां लिखेगा, उसमें से लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में 4000 दिया है, क्रेडिट क्रेडिट साइड, ऑपोजिट साइड लिखा तो लेस, और एक लाइन छोड़ देना। सेम वे वन मोर टाइम, कमीशन, और एक है
ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कमीशन, जितना भी कमीशन का कैश चेक देगा मैं लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, एक लाइन छोड़ दो. So rule number 1, those transactions which come in the opening balance sheet bring down same side. याद करो हमारा 12th स्टैंडर्ड का एनपीओ चैप्टर, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये एडजस्टमेंट होता है. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वी पे ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिट साइड, ऑपोजिट साइड लिखा तो लेस. जितना भी रेंट सैलरी कमीशन का कैश चेक दिया है उसमें से लास्ट ईयर का एक्सपेंस माइनस होकर ऑटोमेटिकली करंट ईयर बचेगा. चलिए आगे, अभी असेट्स पर आए. रूल नंबर 1, those transactions which come in the opening balance sheet bring down same side. Cash and bank combined figure है 75,000. Cash and bank 75,000. Cash and bank 75,000. Cash and bank 75,000. Then debtors 160. Debtors 160. Debtors 160. Cash and bank 75,000. Debtors 1,60,000. नेक्स्ट क्या है? ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ ऑयल कहाँ लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ ऑयल, ओपनिंग स्टॉक 1,25,000. उधर ब्रैकेट में लिखा है 125 टीन्स, तो मैं भी लिख देता हूँ 125 टीन्स. इसका कुछ काम आएगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ नुकसान तो नहीं है ना लिखने से. ओपनिंग स्टॉक 125 टीन्स, वर्ड भी खास लिखना, शायद उसका काम आ सकता है बाद में, वी डोंट नो, वरना दिया क्यों है. सो ओपनिंग स्टॉक. नेक्स्ट, फर्नीचर 27,000. Furniture 27,000. In our column because we have to depreciate, na? फर्नीचर, फर्नीचर के नीचे जो ट्रांजेक्शन है क्या है? एडवांस रेंट, उसको हम पेंडिंग रखते हैं. ओके, क्यों पेंडिंग रखता हूं? क्योंकि इसके लिए और आगे बहुत सारा एडजस्टमेंट है, बड़ा सा पैराग्राफ है, उनको समझना होगा वो क्या है. देन विल डिस्कस. सो एडवांस रेंट एक पेंडिंग रखा है, डोंट वरी. सो फर्नीचर के बाद एडवांस रेंट पेंडिंग रखा है. इलेक्ट्रिक डिपॉजिट असेट होता है, 3 व्हीलर टेम्पो वैन भी असेट होता है. सो इलेक्ट्रिक डिपॉजिट 3 व्हीलर टेम्पो वैन. चलिए आगे. सो अब ध्यान से देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट पूरी खत्म हो गई, एक्सेप्टिंग दिस एडवांस रेंट विच वी हैव केप्ट पेंडिंग. टॉपिक का नाम है अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. हमको फाइनल अकाउंट बनाना है, बट बहुत सारी बातें मिसिंग है. सो वी आफ्टर ड्रॉइंग लाइन्स अप्लाई 2 रूल. दो ही तो रूल है. कौन से 2 रूल है? रूल 1 एंड रूल 2. रूल 1 क्या है? दोज ट्रांजेक्शंस विच कम इन द ओपनिंग बैलेंस शीट ब्रिंग डाउन सेम साइड. रूल 2 क्या है? रूल 2 बोलता है ऑल द ट्रांजेक्शन विच डोंट कम इन द ओपनिंग बैलेंस शीट, all the transactions which do not come in the opening balance sheet, they will come for 2 times, one debit and one credit.
All the transactions which don't come in the opening balance sheet will come for 2 times, 1 debit, 1 credit. Of course, debit debit में होता है, credit credit में होता है. Like a maths, if you change the opposite side, minus हो जाता है. चलिए, अब इधर आते हैं. A summary of the rough cash book is as follow. Cash sales, cash to sell, cash में combine दिया वैसे भी. Collection from debtor, cash to debtor. तो cash sales and cash to debtor करिए. Cash sales में भी adjustment है and cash to debtors. Cash sale में भी है adjustment. Cash sales कितना है? 526,500 and collection from debtors. Cash sales. Cash sales इसमें एक एडजस्टमेंट है, फिर क्रेडिट आएगा, इधर भी फिर कुछ एक लाइन छोड़ना है. सो कैश सेल्स के नीचे 5 लाइन्स छोड़ दो. कैश टू सेल्स, कैश सेल में कुछ एडजस्टमेंट है. आफ्टर कैश सेल्स लीव 5 लाइन्स. कैश टू सेल्स, फिर डेटर्स टू सेल्स, सॉरी कैश टू डेटर्स, डेटर में बाय कैश 2673,500. कैश टू डेटर्स, डेटर्स में बाय कैश cash to debtors and before that cash to sales. Cash to debtors, before that cash to sales. All the transactions which don't come in the opening balance sheet 2 times. चलिए आगे. नेक्स्ट क्या है? Let's go further. Next, payment. Payment to landlord, payment to salary, payment for office expense, commission, personal tax, FD and creditors. Orally बोलूँ तो landlord to cash, salaries to cash, office expense to cash, commission to cash, personal income tax to cash, 12% FD to cash, creditor to cash. तो एक काम करता हूँ, सबसे पहला एक बार कैश में लिखता हूँ, फिर उसकी पोस्टिंग करते जाएंगे. एक बार कैश बुक में लिखते हैं, देन विल स्टार्ट पोस्टिंग. सो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड 79,000. फिर बाय सैलरीज 48,000. फिर बाय मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस 12,000. फिर बाय कमीशन 20,000. फिर पर्सनल इनकम टैक्स 50,000. By 12% fixed deposit 6 lakh. By creditors 24 lakh. कैश बुक में पेमेंट साइड सब ट्रांजैक्शन लिख दिया. अब मुझे ऑपोजिट इफेक्ट देनी है.
मैंने कैश बुक में पेमेंट में सब ट्रांजेक्शन लिख दिया, अभी ऑपोजिट इफेक्ट देगा क्योंकि रूल नंबर 2 सेज ऑल द ट्रांजेक्शंस व्हिच डोंट कम इन द ओपनिंग बैलेंस शीट 2 टाइम। सो लैंडलॉर्ड रेंट में आएगा पीएनएल में, सैलरी ऑफिस एक्सपेंस कमीशन पीएनएल में आएगा, पर्सनल इनकम टैक्स पेड फ्रॉम बिजनेस मनी ड्रॉइंग कैपिटल से लेस हो जाएगा, 12% एफडी असेट्स में हो जाएगा, क्रेडिटर टू कैश क्रेडिटर के अकाउंट में होगा। गिव द सेकंड इफेक्ट। There are only two rules, rule 1 and rule 2. Rule 1 says all the transactions which come in the opening balance sheet bring down same side. चलिए start करिए rule 1 and rule 2. Start करो। Landlord to cash posting कर दो। Landlord to cash 79,000। फिर लैंडलॉर्ड टू कैश के बाद सैलरीज टू कैश 48,000। उसके बाद है मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस 12,000। मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस 12,000। उसके बाद है कमीशन 20,000। सो मैंने लैंडलॉर्ड टू कैश 79, सैलरीज टू कैश, ऑफिस एक्सपेंस टू कैश, कमीशन टू कैश, बाद में पर्सनल इनकम टैक्स 50, पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड फ्रॉम बिजनेस मनी, सोच के बोलो कहाँ लिखूं, पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड फ्रॉम बिजनेस मनी कहाँ आता है, ड्रॉइंग लेस फ्रॉम कैपिटल, सो लेस पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स पेड फ्रॉम बिजनेस मनी, पर्सनल इनकम टैक्स पेड फ्रॉम बिजनेस मनी। आगे ट्रांसफर टू एफडी 12% एफडी, FD, and last creditor to cash. $24 lakh creditor to cash। हमने ये सब की सेकंड इफेक्ट दे दिया, हमने ये सब का सेकंड इफेक्ट दे दिया है। लैंडलॉर्ड टू कैश रेंट में पीएनएल 79, सैलरीज में आ गया, मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस में भी आ गया, कमीशन में भी आ गया, पर्सनल इनकम टैक्स भी आ गया, 12% एफडी भी आ गया, एंड क्रेडिटर भी आ गया। ओके, एक साइलेंट एडजस्टमेंट कर दे, क्या बता सकते हैं किसके बारे में है साइलेंट एडजस्टमेंट? क्या आप बता सकते हैं साइलेंट एडजस्टमेंट किसके बारे में है? हाँ, 12% सिक्योरिटी डिपॉजिट, 12% एफडी। क्या आप Less than 12%. या बिल्कुल सही, इंटरेस्ट के बारे में। कब किया है हमने ये एफडी? कब किया है ये एफडी? अक्टूबर में। तो अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ का इंटरेस्ट इज अक्रूड, कैलकुलेट करो। पूरा ईयर का 72,000 इंटरेस्ट होता है, हाफ ईयर का कितना होगा? 36। सो बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी पता है 12%, 6 लाख
for 6 months. 36,000. P&L credit balance sheet asset. P&L credit balance sheet asset. P&L credit balance sheet asset, accrued interest. आगे चले आगे। इंटरेस्ट ऑन एफडी, बैलेंस शीट असेट, पीएनएल क्रेडिट। चलिए इधर आ जाओ एडजस्टमेंट में। A scrutiny of other record gives you the following information. During the year, oil was purchased at 250 tins per month at a unit cost of 1000. ठीक है, वो एक एडजस्टमेंट हो गया, दैट्स अ फर्स्ट एडजस्टमेंट। 5 tins were damaged in transit in respect of which insurance claim has been preferred. 5 tins टूट गया, second adjustment. Surveyor have approved 80% of claim, third adjustment. Damaged ones are sold for 1500, which is included in cash sale, fourth adjustment. 1 tin is used for personal consumption, fifth adjustment. Total number of tins sold during the year was 3000 at a price of 1750. Totally 6 adjustment hai. Let's go step by step. During the year, oil was purchased at 250 tins per month at a unit cost of 1000. तो आप बता सकते हैं इसका क्या करूं? 250 tins into 12 month, 3000 in a year, 1000 each, कितना हो गया? 30 lakhs. जर्नल बताओ, परचेस टू क्रेडिटर, परचेस टू पार्टी, जो भी बोले एक ही बात है, एंट्री कर दो इतना लिख के। 250 tins multiply by 12 month, 3000 multiply by 1000 each, 30 lakhs. जर्नल इतना भी लिख दो, जर्नल एंट्री भी कर दो, परचेस टू क्रेडिटर। क्या करेंगे एंट्री? परचेस टू क्रेडिटर, जस्ट जर्नल एंट्री कर दो। 250 tins multiply by 12 month, 1000 purchase to creditor, purchase to creditor, पोस्टिंग कर दो। परचेजेस $30 lakhs। कितना टीन्स परचेस किया है? 3000 टीन्स। परचेस टू क्रेडिटर 30 lakhs, परचेजेस टू क्रेडिटर 30 lakhs। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर में क्रेडिट बाय परचेजेस 30 lakhs। Purchases to creditor 30 lakhs. Purchases to creditor 30 lakhs. Purchases to creditor 30 lakhs. देखा? चलिए नेक्स्ट ध्यान से देखना अभी। 5 tins were damaged in transit in respect of which claim will be preferred or claim has been preferred. 5 tins की मनी बताओ। 5 tins टूट गया, 5,000 5000 because 1000 each है।
बाद में 80% क्लेम भी होगा, बाद में कुछ स्क्रैप में भी बेचेंगे। 3 एडजस्टमेंट है, क्योंकि द मोर नंबर ऑफ एडजस्टमेंट, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, पहली बार कर रहा हूँ, जिस तरीके से आप देखेंगे मैं जैसे करने जा रहा हूँ, सी मैं कैसे कर रहा हूँ। 5 टीन्स टूट गया है, तो देखो मैं एक अलग से अकाउंट बनाता हूँ, बाय डैमेज स्टॉक अकाउंट। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ ये एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट में ही कर रहा हूँ, बाय डैमेज स्टॉक। तुम्हारे लिए नया है मुझे मालूम है। 5000 ब्रैकेट में 5 टीन्स, मतलब मैंने एक डैमेज स्टॉक का अलग अकाउंट बना दिया है। ओके, सी हियर, मैं डैमेज स्टॉक का एक अलग अकाउंट बना रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हारे लिए थोड़ा नया स्टाइल है ये। डैमेज स्टॉक हमने एक अलग से अकाउंट बना दिया है। एंट्री कैसे होगी, डैमेज स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, डैमेज स्टॉक टू। मगर मैं ऐसा क्यों बना रहा हूं, 11th 12th में तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट होते थे, तो ऐसा अकाउंट नहीं बनाते थे। हाँ, मगर यहाँ बिकॉज द मोर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, आप देखेंगे विच आर द मोर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, सपोज कोई क्लेम नहीं है, तो फिर फुल लॉस हो जाएगा, स्ट्रेट वे हम पीएनएल में रख देते हैं, लॉस हो गया। इनफैक्ट तो अकाउंट की भी क्या जरूरत है, 11th स्टैंडर्ड के जैसे लॉस बाय फायर टू गुड्स कर देते हैं, लॉस पीएनएल में डेबिट, ट्रेडिंग में क्रेडिट डायरेक्टली। बट हम लोग में ऐसा नहीं है, हमारे में क्या है, 80% इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हो गया है। सो बाय इंश्योरेंस कंपनी से मुझे 80% लेना है। सो 80% ऑफ 5000 इज 4000, तो उसकी इफेक्ट तो बैलेंस शीट में आ जाएगी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी देव एक्सेप्टेड द क्लेम। ये भी आपको आता है। ओके, अभी और कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता था ना, तो 1000 लॉस हो जाता है, हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं, पीएनएल में हो गया लॉस। इनफैक्ट अभी भी लेजर की जरूरत नहीं है, आप 11th 12th में तो डायरेक्टली कर देते थे, गुड्स ऑफ 5000 लॉस बाय फायर, 4000 क्लेम एक्सेप्टेड। हम क्या करते थे, पीएनएल डेबिट 1000, 4000 इंश्योरेंस कंपनी बैलेंस शीट असेट एंड ट्रेडिंग क्रेडिट। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है, हमारे में और एक एडजस्टमेंट है, एंड क्योंकि वी हैव मोर नंबर ऑफ एडजस्टमेंट, मैंने अकाउंट बनाया है। ओके, वापस से देखिए हमने क्या किया। सबसे पहला एक 5000 रुपीज डैमेज स्टॉक का एक अलग अकाउंट बना दिया, उसमें से 4000 क्लेम भी एक्सेप्ट हो गया है। यदि इफ देयर वर नो मोर ट्रांजेक्शन, 1000 वुड हैव बीन द लॉस, बट वी हैव अ ट्रांजेक्शन। अब क्वेश्चन पढ़ के बताओ, अब क्या ट्रांजेक्शन है, हाउ आर यू गोइंग टू डू इट, बताइए। डैमेज वन का क्या हुआ, द डैमेज वंस वाज सोल्ड फॉर 1500, 5 का स्क्रैप 1500 में बेच दिया है, लेकिन क्या, दैट इज इंक्लूडेड इन द कैश सेल्स। अब इसका क्या करें, डैमेज वंस आर सोल्ड फॉर 1500 एंड दैट इज इंक्लूडेड इन द कैश सेल। अरे मेरे पास ये जो कैश सेल है ना, इसके अंदर वो डैमेज स्टॉक सेल मिक्सअप हो गया है। डैमेज स्टॉक का सेल कहां आना चाहिए, सोच के आंसर देना। डैमेज स्टॉक बेच दिया है तो कहां आना चाहिए, where it should come, cash coming in debit, what comes into what, can I write cash to sell or I should have written cash to damage stock? सोच के आंसर बोलो। So क्या आपको cash, चैट में आंसर लिखना है, चैट में आंसर लिखना है, लिखो चैट में वर्ड लिखो, कैश टू सेल, सेल में क्रेडिट होना चाहिए कि कैश टू डैमेज स्टॉक होना चाहिए, लिखो जरा, विच अकाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, लिखो जरा। बोलो जरा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए फॉर सेलिंग दिस स्क्रैप, और डैमेज स्टॉक अकाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, सोच के लिखो चैट में। हमने डैमेज स्टॉक 1500 में बेच दिया, ओके।
कैश अकाउंट डेबिट सही है, नो मिस्टेक इन दैट, बट विच अकाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड? ऑल ऑफ यू गिवन द करेक्ट आंसर। सब लोग ने सही जवाब दिया कि कैश टू डैमेज स्टॉक होना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बिजनेसमैन ने, ये अकाउंटेंट ने तो सेल के अंदर कर दिया है ना, तो मैं क्या करूं बोलो? अभी मैं क्या करूं, माइक में बोलो। ये कैश सेल्स में आ गया है, क्या करें? यहां से हटाओ, यहां से क्या करें? हटाओ और उसको अपनी असली जगह बताओ। बताओ उसकी असली जगह कहां थी? इसकी असली जगह तो डैमेज स्टॉक अकाउंट थी। उसकी असली जगह तो डैमेज स्टॉक अकाउंट थी। बाय कैश लिखो या बाय सेल्स लिखो, जो भी लिखना है लिखो ना, या बाय कैश सेल्स लिखो, बट आएगा यहाँ। यस, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गया एक्चुअली कि वी हैव सोल्ड द डैमेज स्टॉक, द करेक्ट आंसर शुड बी कैश टू डैमेज स्टॉक, बट अकाउंटेंट ने कैश टू सेल्स कर दिया। सेल्स इज रॉन्गली क्रेडिटेड, डेबिट नाउ, स्टॉक इज नॉट एट ऑल क्रेडिटेड, क्रेडिट नाउ, रेक्टिफिकेशन, सेल्स टू डैमेज स्टॉक। बस अब इसको क्लोज कर दो, अब आप इसको क्लोज कर दो। बताओ कितना डिफरेंस आ गया? 500 कहां जाएगा? बोलिए, कैश द डैमेज स्टॉक टू पीएनएल, पीएनएल में जाएगा बाय प्रॉफिट ऑन डैमेज स्टॉक, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डैमेज स्टॉक 500। ये वाला एडजस्टमेंट पूरी तरह से खत्म हुआ, ये वाला एडजस्टमेंट कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट। तो देखो हमने ये टाइम क्या किया, हम लोगों ने ये बार अलग से डैमेज स्टॉक अकाउंट बनाया। मगर क्यों बनाया, ऐसा क्यों किया? क्योंकि more number of adjustments, that was the only reason, otherwise I could have done orally. So पहला डैमेज स्टॉक में 5000 ट्रांसफर कर दिया, देन 80% 4000 का क्लेम भी एक्सेप्ट हो गया, देन स्क्रैप में 1500 बेच दिया, मगर वहां रेक्टिफिकेशन था, गलती से सेल्स में लिख दिया था, हटा दिया, डिफरेंस पीएनएल में आ गया। ये एडजस्टमेंट खत्म हो गया। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द गुड एडजस्टमेंट इन दिस सब। चले आगे। लेट्स गो फर्दर। अभी आगे क्या है? 1 टीन has been used up for personal consumption. 1 टीन की कीमत बताओ, 1 टीन की कीमत 1000. 1000। पर्सनल यूज के लिए घर लेके गया, एनीथिंग टेकन होम फ्रॉम द बिजनेस, ड्रॉइंग, तो क्या लिखूं? बाय गुड्स विथड्रॉन, ड्रॉइंग टू गुड्स जर्नल एंट्री करना है तो ड्रॉइंग टू गुड्स। आप चाहे तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट लिखो, चाहे तो परचेज से लेस लिखो, एक ही बात है। आपको जर्नल एंट्री करना है तो ड्रॉइंग टू गुड्स, ड्रॉइंग लेस फ्रॉम कैपिटल। सेकंड इफेक्ट, आप चाहे तो गुड्स ट्रेडिंग में क्रेडिट लिखो, चाहे तो परचेज से लेस लिखो। मुंबई बोर्ड ट्रेडिंग क्रेडिट लिखती है एंड सीबीएसई बोर्ड परचेज से लेस लिखता है। परचेज से लेस लिखना, उसका मीनिंग क्या होता है पता है? हमने जो भी 3000 टीन परचेज किया उसमें से 1000 तो बिजनेस के लिए था ही नहीं, माइनस कर दिया। क्रेडिट में लिखा, उसका मीनिंग क्या होता है? पहले बिजनेस के लिए मैंने 3000 लिया, बट सब्सिक्वेंटली आई टूक 1000 होम, वो सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन बना। एनीवे उससे ज्यादा फर्क नहीं होता, आप दोनों में से कोई भी लिखो, वॉट एवर यू आर मोर कन्वीनियंट एंड फेमिलियर, आई एम ओके विद दैट। लेस गुड्स विथड्रॉन।
1000. So 1000 rupees goods withdrawn. Journal entry, a drawing to goods. You are taking something home, your capital becomes less, and because goods are going out, trading account credit side. 1 tin has been withdrawn. चलिए आगे. 1 tin has been withdrawn for personal use, personal consumption. आगे चले. 1 tin has been used up for personal consumption. Drawing to goods. आगे. Total number of tins sold during the year is 3000 at a unit price of 1750. So total sale 3000 है, each one at 1750. टोटल है वर्ड. सो देखो ये कैसे कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए आप भी थोड़ा सोचना क्या कर रहा हूं मैं. ओके, सो व्हाट इज टोटल सेल्स? $3,000 टीन्स, 50 to 50. पता है ऑल दीज टीन्स आर गुड क्वालिटी, मतलब इसके अंदर स्क्रैप नहीं है. कैसे पता चला स्क्रैप नहीं है? क्योंकि ये सब तो फुल प्राइस पर बेचा है. ऑल गुड्स क्वालिटी सिंस सोल्ड एट फुल प्राइस. सबके सब अच्छी क्वालिटी में बेचा है क्योंकि पूरा प्राइस पर बेच दिया है. अच्छा, ये टोटल सेल वर्ड है. टोटल सेल का मतलब क्या होता है? इसके अंदर कैश सेल्स भी होता है. कितना है कैश सेल्स? ऑलरेडी कैश सेल का फिगर तो हमारे पास है. अब देखिए ना, कैश सेल का फिगर हमारे पास है. क्या आप बता सकते हैं कैश सेल्स का फिगर कितना है? सोच के बोलना, सोच के बोलना, कैश सेल का फिगर कितना है बताइए. 5,25,000. 5,25,000 कैश सेल है. अच्छा क्वालिटी वाली टीन है. तो बताओ बैलेंस क्या बचेगा क्रेडिट सेल? सर्कल माने बैलेंसिंग फिगर. एंट्री या डेटर्स टू सेल. कैश सेल्स की तो एंट्री भी हो गई है, मुझे क्रेडिट सेल्स की एंट्री करनी है खाली. चलिए आगे एंट्री कर दो. सो टोटल 3,000 टीन्स आर सोल्ड एट 1750, 52 लाख 50. ये सब के सब अच्छी क्वालिटी का. कैसे पता चला? बिकॉज दे आर सोल्ड एट फुल प्राइस ऑफ 1750. दिस ऑलरेडी इंक्लूड अपना 525 तो कैश सेल है, तो बचा हुआ क्रेडिट सेल. क्रेडिट सेल की एंट्री या डेटर्स टू सेल्स. $47,25,000 डेटर्स टू सेल. 47,25,000. इधर देखो मैं अभी कैसे लिखता हूँ. 47,25,000, 47,25,000. सो आउटर कॉलम में हो जाएगा 52,50,000. एंड नंबर ऑफ टीन्स कितना था याद है आपको? 3,000 टीन्स.
3000 teens. चलिए आगे. Debtors to sales. Debtors debit to sales 4725. Debtors to sales और सेल्स में क्रेडिट 4725. टोटल 50 to 50. ब्रैकेट में 3000 टीन्स. If you're finished, we can go further. Can I go further? Chat में yes लिखो why if you want me to go further. Yes, sir. Why word लिखो तो I'll go further. Oh, very good. 30 of you have replied. Very nice. चलिए हमारा मेन एडजस्टमेंट हो गया. हम लोग का ये मेन एडजस्टमेंट जो था ना, दैट पार्ट इज ओवर. चलिए हम लोग अभी सेकंड एडजस्टमेंट में चलते हैं. रेंट until 30 September was 6,000 per month. 30 September means for 6 months and was increased thereafter by 1,000 per month. बाद में 1 increase हो गया, 7 हो गया. Additional advance rent of 2,000 was paid and that is included in the figure of payment to landlord. I repeat, up to 30 September for 6 months rent is 6,000, next 6 months 7,000. Additional advance rent of 2,000 was paid. चलिए आगे. ओके चलते हैं. रेंट की बात चल रही है इधर कुछ. रेंट for 6 months. Next 6 months. कोई मुझे सोच के आंसर दे सकता है? 78,000 क्या होगा? 78,000 क्या है एग्जैक्टली? रेंट फॉर होल ईयर आउटर कॉलम में जाएगा. ये फिगर पीएनएल में आउटर कॉलम में आना चाहिए. क्या ये फिगर पीएनएल में आउटर कॉलम में होना चाहिए? हाँ सर. करेक्ट. फर्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ, ये पीएनएल में आउटर कॉलम में होना चाहिए. ठीक है, देखेंगे हम आगे क्या दिया है. उसी आगे क्या दिया है, सेम एडजस्टमेंट में आगे. Additional advance rent of 2,000 was paid and that's included in the figure of payment to landlord. अब क्वेश्चन है ये एडवांस रेंट वर्ड क्या है, क्योंकि वी हैव लेफ्ट दैट लाइन. देखो इधर भी एडवांस रेंट वर्ड आया है. ये क्या है? बैलेंस शीट असेट में हमने इसको हाथ नहीं लगाया है. देखिए वी हैव लेफ्ट आउट दैट. ये क्या है? नॉर्मली एडवांस रेंट वर्ड क्या होता है? नॉर्मली एडवांस रेंट वर्ड प्रीपेड रेंट होता है. रेंट पेड इन एडवांस. ये नॉर्मल की बात कर रहा हूं. तो प्रॉब्लम क्या है मेरे को प्रॉब्लम? किसी को समस्या समझ में आ रही है मेरी प्रॉब्लम क्या है? नॉर्मली एडवांस रेंट प्रीपेड रेंट होता है. प्रीपेड रेंट क्या होता है? एक्सपेंडिचर पेड इन एडवांस. मगर मेरी समस्या क्या है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्या? मैंने 2 रेड कलर का सर्कल बनाया है, एक असेट में एक लायबिलिटी में. आप किसी को समस्या समझ में आई? यस सर. क्या समझ में आई? सर यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर प्रीपेड है तो आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता और आउटस्टैंडिंग है तो प्रीपेड नहीं हो सकता. अरे बिल्कुल सही. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एग्जैक्ट इंग्लिश वही बोला आपने जो मैं चाहता हूँ. वेरी राइट. नॉर्मली एडवांस रेंट जो असेट में होता है वो प्रीपेड होता है, लेकिन समस्या ये है कि हमारे को ऑलरेडी सेम बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग भी दिया. आउटस्टैंडिंग माने पेएबल एंड प्रीपेड माने एक्स्ट्रा पेड. बोथ कैन नॉट एग्जिस्ट एट द सेम टाइम.
यदि आउटस्टैंडिंग है तो प्रीपेड नहीं हो सकता है, प्रीपेड है तो आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता। आउटस्टैंडिंग तो दिख ही रहा है ना 6000, तो फिर ये एडवांस रेंट प्रीपेड न होते हुए क्या हो सकता है? एडवांस रेंट प्रीपेड न होते हुए क्या हो सकता है? एडवांस रेंट प्रीपेड न होते हुए क्या हो सकता है? सोचिए, सोचो, लिखना स्टार्ट करो। सर मे बी रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एक्रूड रेंट। अबे तो लायबिलिटी होती है। एक्रूड नहीं ना, नहीं नहीं ना, नहीं, रेंट येट टू बी नॉर्मली, रिसीव्ड आई नहीं थिंक। नहीं नहीं, नॉर्मली एडवांस रेंट, लिखना स्टार्ट, इज प्रीपेड रेंट। However, in same balance sheet, outstanding rent is also given. Prepaid rent and outstanding rent both cannot come together. Hence, prepaid rent must be in the nature of क्या? आप दुकान मकान भाड़े पर लेने को जाओ, अपने आप समझ जाएंगे वो ओनर क्या डिमांड करेगा। डिपॉजिट। हाँ, मस्ट बी इन द नेचर ऑफ डिपॉजिट। नॉर्मली जो ओनर होता है ना, वो 3 मंथ रेंट, 6 मंथ रेंट, 2 मंथ रेंट उतना एक्स्ट्रा लेते हैं एज ए डिपॉजिट, उसको हाथ नहीं लगाने देते हैं, वो एंड में रिफंड करता है। समझ में आया? सो एडवांस रेंट मस्ट बी इन द नेचर ऑफ डिपॉजिट। लिख दिया आपने? नॉर्मली एडवांस रेंट इज प्रीपेड रेंट, हाउएवर इन सेम बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग रेंट इज आल्सो गिवन। Prepaid rent and outstanding rent both cannot come together. Hence, prepaid rent must be in the nature of deposit. So बताइए, जो ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस शीट में 12,000 पेंडिंग रखा था ना हमने, अभी उसको खत्म कर देते हैं, ये डिपॉजिट है। सो कहाँ लिखो? 12,000 डिपॉजिट है, इन द नेचर ऑफ डिपॉजिट। तो बताइए हम कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी। एसेट, डेबिट में दिया है। हाँ सर, हाँ सर, एसेट। एडवांस रेंट, इट इज इन द नेचर ऑफ डिपॉजिट, और इसमें भी एडजस्टमेंट है। सो 12,000। सो ट्रायल बैलेंस ट्रांजेक्शन खत्म हो गया। एडवांस रेंट डिपॉजिट, इट्स इन द नेचर ऑफ डिपॉजिट। दुनिया इधर से इधर हो जाए, those transaction which come in the opening balance sheet bring down same side. So 12,000 asset में deposit, 12,000 asset में deposit। आगे चले, 12,000 asset में deposit। ठीक है, अब उधर भी और एक एडजस्टमेंट है। क्या लिखा है? ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ है? एडिशनल एडवांस रेंट, मतलब एडिशनल डिपॉजिट ऑफ 2,000 was paid and that's included in the figure of payment to landlord. अरे भाई, ये फिगर ऑफ पेमेंट टू लैंडलॉर्ड माने 79,000 था ना, 79। उसमें क्या मिक्सड है? इसमें क्या मिक्सड है? एडिशनल डिपॉजिट, एडिशनल एडवांस रेंट, इसके अंदर। तो बताओ मैं क्या करूं? माइनस कर दो। फिगर ऑफ पेमेंट टू लैंडलॉर्ड दैट इज 79,000 के अंदर एडवांस रेंट मिक्सड है, तो इधर से लेस करके कहां लिख देंगे? असेट में, एडिशनल डिपॉजिट। नाउ दैट आउटर कॉलम में हमारा 14,000 आ गया। जैसे एक नॉर्मल बिजनेस कंक्लूजन की एंगल से सोचो, ये ओनर कितना मंथ का रेंट ऐसे डिपॉजिट रखता है? आप बता सकते हैं? ओनर कितना मंथ का रेंट ऐसे डिपॉजिट ले रहा है? 2 मंथ। 2 मंथ, राइट आंसर है। पता है, पहले रेंट 6,000 था, तब डिपॉजिट 12 था।
बाद में रेंट इंक्रीज हो गया तो उसको डिपॉजिट शॉर्ट पड़ गई, तो बोलता और डिपॉजिट दो मुझे, सो दैट तुम्हारी डिपॉजिट ओनर के पास रहता है 2 मंथ का 14,000, अभी पहले 12 था। सही जवाब, गुड, वेरी गुड। सो ये वाला एडजस्टमेंट पूरी तरह से खत्म हुआ है। आगे चले, क्या आपको स्क्रीन क्लियरली दिख रहा है? यस सर। यस सर। एटलीस्ट टॉपिक समझने के लिए तो ऐसे ही लग रहा है ना, नॉर्मल लेक्चर चल रहा है, हाँ या ना? एटलीस्ट टॉपिक समझने के लिए। हाँ, हाँ सर। मैं मानता हूं मुंबई में आना है हमको, पक्का आना है, हमको भी कॉलेज जाना है। लेट्स होप फास्ट सून। अभी तो मुंबई में थोड़ा थोड़ा खुल रहा है सब कुछ, लोकल ट्रेन कल से चालू हुई है बट रेस्ट्रिक्टेड टाइमिंग के साथ। चलिए आगे। Provide 10% depreciation and 25% depreciation on furniture and tempo van respectively। कर दो depreciation, furniture 10% and tempo 25%। Less depreciation, 10% and 25%। चलिए, it is further noticed that a customer has paid 10,000 rupees on March 5 as a security deposit by cash। चैनल बताओ, कस्टमर ने 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हमको, कैश कमिंग इन डेबिट, व्हाट कम्स इनटू सिक्योरिटी डिपॉजिट। बाद में वन ऑफ द स्टाफ हैज डिफॉल्टेड, एक स्टाफ मेंबर है ना वो पैसे लेके चला गया, वन ऑफ द स्टाफ हैज डिफॉल्टेड एंड क्लेम इज पेंडिंग, उसकी भी हमने क्लेम कर दिया, वो पेंडिंग है बट क्लेम तो है, तो टेंशन थोड़ा कम है, नुकसान कम होगा। एनीवे ये एंट्री कर दो पहले तो। एक कस्टमर से 10,000 डिपॉजिट तो लो पहले, फिर उसको चोरी करने भी दे देंगे हम। बताओ एंट्री क्या करूं? कस्टमर ने डिपॉजिट दिया मुझे पहला, तो वो एंट्री बताओ। कैश टू 12% सिक्योरिटी डिपॉजिट आएगा। अमाउंट बताइए। कैश टू डिपॉजिट कैश टू सिक्योरिटी डिपॉजिट कैश टू सिक्योरिटी डिपॉजिट कैश टू सिक्योरिटी डिपॉजिट, वन कस्टमर पेड एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, अब ये पैसे चोरी हो जाएंगे, लेके भाग जाएगा,
सो कैश तो चला जाएगा। इसकी सेकंड इफेक्ट दो मुझे। सेकंड इफेक्ट, यदि कोई क्लेम नहीं है तो लॉस हो जाएगा, तो लॉस पीएनएल में जाएगा। और क्लेम है तो लॉस नहीं होगा, तो मैं वर्ड इंश्योरेंस क्लेम लिखता हूं। क्योंकि क्लेम अप्रूव नहीं है तो मैं क्लेम लिखता हूं। क्लेम अप्रूव हो जाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी वर्ड लिखेगा। आई रिपीट, कैश गोइंग आउट, क्रेडिट वोट गोज आउट तो हो गया। अब क्वेश्चन है डेबिट कहां करे? पीएनएल में करूं तो लॉस वर्ड हो जाएगा, क्लेम करे तो बैलेंस शीट में आएगा। क्या लग रहा है? कैश तो चला गया, क्लेम लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने क्लेम कर दिया। वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट एज ए लॉस। हाँ, इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो गया या तो इंश्योरेंस ही नहीं है तो ऑब्वियसली लॉस हो जाएगा। बट कंफर्म्ड है, कैश तो चला ही गया, तो लिख डालो बाय कैश डिफाल्केशन। कैश डिफाल्केशन, कैश में क्रेडिट साइड। एंड सेकंड, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम फॉर कैश डिफाल्केशन। हम पीएनएल में नहीं लिखते हैं, हम मानते हैं क्लेम हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। हमने इंश्योरेंस भी लिया है इसके लिए। कैश डिफाल्केशन 10,000। अब ऐसे ही लिखने का, अब जैसे मैंने लिखा है ना वैसे ही कॉपी करो। सॉरी सर, ऐसा क्यों करते हैं? पीएनएल में क्यों नहीं? क्योंकि हमारी क्लेम है ना। मतलब कि तुम क्या मानते हैं लॉस हो गया है? देखो क्लेम है ना, हमारी क्लेम है। सपोज अपना 10,000 रुपये ऑफिस में से चोरी हो गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी हमें भरपाई कर देगी, तो क्या हमको कोई नुकसान होने वाला है? हाँ सर। ओ नहीं। नुकसान नहीं होगा ना, तो हाँ पीएनएल नहीं। में नहीं आएगा। पीएनएल में कब आता है? अच्छा, जब नुकसान होगा तो। हाँ, जब हमारा लॉस हो जाएगा। तो इसमें हमको बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, इसके लिए तो हमने इंश्योरेंस निकाला है। ओके। ओवर, आगे चलते हैं। अब पूरा टॉपिक में बचा है कि पॉइंट कौन सा, सोच के बोलो। सिक्योरिटी डिपॉजिट रिलेटेड 12% सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या? इंटरेस्ट। दो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, एक 50,000 का ओल्ड है, पूरा ईयर का 6,000, और नया है वो तो लास्ट डेट पर है, उसके ऊपर कोई नहीं। सो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट कैलकुलेट कर दो। ओल्ड 12% of 50,000, 6,000. New 10,000 received on last day. So 6,000. Interest on security deposit 12% of 50,000, 6,000. And 10,000 तो received on last day, उसके पर नहीं आएगा। बताओ लिखूं कहाँ? ये इंटरेस्ट लिखे कहाँ? ऑब्वियसली पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। ये पे किया है कि पे करना बाकी है? बाकी है, पे नहीं हुआ है। कैसे पता चला अभी तक पे नहीं हुआ है? अरे पे करते थे तो कैश बुक में ही आ जाता है ना। पे हुआ होता था तो कैश बुक में आता है, कैश बुक में नहीं आया, आउटस्टैंडिंग है, अक्रूड है, लायबिलिटी। अलग से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखो या सिक्योरिटी डिपॉजिट में ऐड कर दो, वो एक ही बात है। या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करके अलग से लिख लो, एक ही बात है। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन दिया है हमारा सम पूरा हुआ है। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दिया है उसके हिसाब से हमारा सम पूरा हुआ है। चले अब क्लोजिंग।
एटलीस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन खत्म हुआ है, अब जो भी मिसिंग हम निकालते जाएंगे वो तो। सबसे पहले क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, वो तो टैली करके दिया था। फिर डेटा, क्रेडिटर, कैश बुक एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए डेटर्स अकाउंट, चलिए डेटर्स अकाउंट क्या कहते हैं डेटर्स अकाउंट में, सोचो विच आर द मिनिमम 4 इंफॉर्मेशन हैज टू बी देयर। बताओ डेटर्स में मिनिमम 4 इंफॉर्मेशन होना ही चाहिए। अंडरस्टैंड द अकाउंट, रीड द अकाउंट प्रॉपर्ली। कोई कोई स्टूडेंट को मिसिंग में समस्या होती है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इसमें कौन सा मिसिंग होता है, क्योंकि दे फेल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द अकाउंट। आपको ये पता होना चाहिए डेटर्स के अकाउंट में क्या क्या होना ही है। ओपनिंग रिसीवेबल होता ही है, क्रेडिट सेल का मनी रिसीवेबल होता ही है, टोटल रिसीवेबल, सामने मनी कलेक्टेड एंड द क्लोजिंग रिसीवेबल। तो बताओ क्लोजिंग रिसीवेबल कितना है, बताओ क्लोजिंग रिसीवेबल कितना है। So it's 22,11,500. ओके, पता है हम लोग अमाउंट को सर्कल करते हैं, उसका मतलब, अमाउंट को सर्कल करते हैं तो उसका मतलब बताओ। बैलेंसिंग फिगर। हाँ, पूरी दुनिया में एक ही आदमी बैलेंस वर्ड को सर्कल करता है, वो आप और मैं है। बैलेंस माने बोलो, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। क्लोजिंग में दिखता है तो क्लोजिंग में लिखो। डेटर्स क्लोजिंग में लिखा था। डेटर्स डेटर्स चलिए क्रेडिटर में बताओ क्या क्या होता है क्रेडिटर में। ओपनिंग पेएबल, न्यू परचेस पेएबल, टोटल पेएबल, पेमेंट मेड एंड क्लोजिंग पेएबल। सर क्या सर ये क्रेडिटर्स में कैश कहाँ से आया? पेमेंट हुआ था ना, क्वेश्चन में था ना ये वाला, पेमेंट टू क्रेडिटर 24 लाख पेमेंट में, ये सब पेमेंट है ना, याद है, देखो ना कैश बुक में दिया था ना। यस सर, मिल गया मिल गया। चलिए क्रेडिटर्स, बताओ कितना बैलेंस आ गया। 8 लाख। 8 लाख। मैंने बैलेंस को क्यों सर्कल किया, बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट 8 लाख। आगे कैश बुक में बताओ बैलेंस कितना है अभी, कैश बुक में बैलेंस बताओ। 66,000। सही जवाब।
66,000 बैलेंस 66,000 हमने 66,000 को सर्कल किया है विच मीन्स अ बैलेंसिंग फिगर और मैंने बैलेंस वर्ड को सर्कल किया है विच मीन्स व्हाट बैलेंस शीट कैश एंड बैंक बैलेंस शीट कैश एंड बैंक बैलेंस शीट 119 119 चले आगे सो डेटा क्रेडिटर कैश बुक हो गया अब चाहे तो इधर नंबर लिख सकते थे कैसे कि सबसे पहले मैंने ये फाइंड किया ये अपने समझने के लिए एग्जाम में नहीं बाद में ये फाइंड किया बाद में ये था अब बोलो फोर्थ नंबर ट्रेडिंग में आ जाओ पता है आपको दो मिसिंग फिगर है कोई बता सकते हैं कौन से दो There are two missing figures in the trading account. कौन से दो? Closing stock. Okay. और ग्रॉस प्रॉफिट ना दो मिसिंग फिगर है तो हम नहीं कर सकते हैं तो दिमाग लगाओ दोनों में से एक पहला कौन सा करेंगे वैसे दोनों कर सकते हैं इसमें बट फिर भी सर क्लोजिंग स्टॉक हाँ बताओ क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से मिलेगा सो वो टिन्स की यूनिट बिल्कुल सही जवाब ये जो ग्रीन कलर में टिन्स लिखा है ना तो आप बता सकते हैं टिन मिल जाएगा कि पहला मेरे पास 125 ओपनिंग था देन आई गॉट 3000 मोर उसमें से मैंने 3000 परचेस वाला तो 3000 बेच भी दिया 5 टीन टूट गया 1 टीन घर लेके गया अब बता सकते हैं मेरे पास बिजनेस में और कितने टीन्स बचे हैं 119 या बिल्कुल सही हमारे पास 119 टीन्स बचे हैं तो आपको क्लोजिंग स्टॉक भी मिल ही गया ना एट व्हाट एक एक टीन की कीमत कितनी है 1000 सो क्लोजिंग स्टॉक 119,000 यस ये बैलेंसिंग है 119 बैलेंसिंग है बिल्कुल सही बहुत अच्छी बात है क्लोजिंग स्टॉक ये 119 किधर से लिखा कैश एंड बैंक में तो 66 था ना ये 119 है 119 सही जवाब बहुत अच्छी बात है वेरी नाइस क्लोजिंग स्टॉक 119 अब आप जीपी निकाल दो अब आप प्रॉफिट निकाल दो सो ये मेरा फोर्थ मिसिंग फिगर था नहीं 119 फोर्थ मिसिंग फिगर था या अब मुझे जीपी निकाल के दो 22,50,000 बताओ $22,50,000 gross profit. यस क्या ग्रॉस प्रॉफिट कोई अलग तरीके से डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं आप ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते थे तो फिर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर ले सकते थे कैसे
आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट का रिकंसिलिएशन क्या है? अच्छा, ये तो पता है प्रॉफिट हो कब सकता है? ओनली व्हेन यू सेल गुड्स। सो ये बता सकता है ये प्रॉफिट जो है कितने टीन्स पर हुआ है? जो टीन्स बेचते हैं तो ही प्रॉफिट होता है ना। सर 3000 3000 टीन्स सोल्ड, वेरी राइट। क्या आपको पता है एक एक टीन पर प्रॉफिट कितना है? 750 750 ईच, राइट। क्योंकि 1000 में परचेस किया था, 1750 में सेल किया था, 750 वाज प्रॉफिट पर टीन। अब 3000 टीन सेल किया इंटू 750 करेंगे तो भी 22,50,000 आता है। दैट्स अदर वे ऑफ चेकिंग, करेक्ट? ओके, अब बताइए जीपी ब्रॉट डाउन 22,50,000। नेट प्रॉफिट निकालो। सर आपने P&L के अंदर डेप्रिसिएशन लिख दिया ना? मैं ग्रीन कलर में लिख, रेट के अंदर बाहर आउटर कॉलम में अगर 78,000 आएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग करना पड़ेगा। इधर अच्छा अच्छा, ये फिगर बाकी है ना हमारा, नहीं रुकिए, राइट, ये वाले फिगर बाकी है ना अभी हमारे। रुको रुको, पीएनएल के 3 फिगर बाकी है, देखो इनर कॉलम में अभी भी, रेंट, सैलरी एंड कमीशन। लेट्स से 1 बाय 1, करेक्ट? चलिए 3 फिगर का डिस्कशन बाकी है। रेंट, रेंट कितना है अभी तक मेरे पास यहाँ? राइट नाउ माय रेंट इज 71। अब बताओ मुझे रेंट कितना फिगर चाहिए आउटसाइड में, याद करिए रेंट। रेंट हमें पीएनएल में कितना चाहिए? 78 चाहिए। राइट नाउ तो 71 है, तो क्या कहना है आपका? कितना रेंट आउटस्टैंडिंग है? 7,000। क्या लग रहा है कौन सा पीरियड का रेंट आउटस्टैंडिंग होगा? वही लास्ट मंथ का, मार्च का, क्योंकि मार्च का रेंट हम नेक्स्ट ईयर अप्रैल में पे करेंगे ना। मार्च का रेंट ऑब्वियसली अप्रैल में पे करेंगे। देखो ना, लास्ट ईयर 6,000 आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि लास्ट मार्च वाला करंट ईयर में पे किया, तो लगता है करंट मार्च वाला नेक्स्ट ईयर पे होगा। ओवर। अब सोच के प्रोफेशनल जजमेंट लगाना। कमीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमीशन नहीं है तो नील आउटसाइड, लेकिन मुझे सैलरी में पक्का समस्या है। सपोज आप नॉर्मल अकाउंटेंट है, ज्यादा कुछ टेंशन वाला काम नहीं लेना चाहते हैं, तो स्ट्रेट में 44 बाहर लिख दो। एंड यदि आप कुछ प्रोफेशनल जजमेंट लगाते हैं तो कोई लगा सकते हैं क्या आपको? देखो ये टॉपिक क्या है, टॉपिक का नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मेंटेन बाय बिजनेसमैन आर इनकम्प्लीट, नॉट प्रॉपर्ली मेंटेन, नॉट मेंटेन एट ऑल। सो लॉट ऑफ जजमेंट एंड द बेस्ट एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड। तो क्या आप कोई बेस्ट जजमेंट लगा सकते हैं सैलरी के बारे में? देखो लास्ट ईयर का 4,000 था जो करंट ईयर में पे किया, क्या लग रहा है वो 4,000 कौन से मंथ का होना चाहिए? लास्ट वाला ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मार्च का। मार्च मंथ का। दैट मीन्स क्या लग रहा है हमारा सैलरी पर मंथ क्या है? 4,000। 4,000। क्या लग रहा है ये 44 कौन सा होगा? फरवरी तक सैलरी। हाँ 11 मंथ का फरवरी तक होगा, का। वो 11 मंथ का होगा। सो व्हाट कैन बी द बेस्ट प्रोफेशनल जजमेंट लगाना है तो प्रॉब्लम साइलेंट है, आप ये एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो भी आपका जजमेंट है कि नथिंग इज पेएबल। आदमी है वो भाग गया होगा कोरोना में, गांव चला गया होगा। यहाँ तो आप बेस्ट जजमेंट क्या लगा सकते हैं कि 4,000 आउटस्टैंडिंग होगा। सो देखो ये टॉपिक अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट है, तो आपने ये एडजस्टमेंट 4,000 आउटस्टैंडिंग रेंट के लिए तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। सैलरी के लिए कंपलसरी नहीं है, किया तो ऐसा माना जाएगा कि आप इंटेलिजेंट प्रोफेशनल सीए स्टूडेंट है, एमबीए स्टूडेंट है। नहीं किया तो माना जाएगा आप नॉर्मल बीकॉम के बच्चे हैं। सो हमने एक एजम्पशन लिया, आप चाहे तो एजम्पशन लिख सकते हैं। क्या एजम्पशन लिया
It is assumed current March salary 4,000 is outstanding. ये प्रोफेशनल जजमेंट लगाया, कंपलसरी नहीं है ये जजमेंट लगाने का. एट अंडरग्रेड लेवल चलेगा, बट सीए लेवल पर ये कंपलसरी है, क्योंकि आपको अपना बेस्ट जजमेंट, सीए का एग्जाम दे रहे, चिल्लू पिल्लू थोड़ी दे रहे. अच्छा, कमीशन में क्यों फिर ऐसा प्रोफेशनल जजमेंट नहीं लगाया? क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन में कमीशन ही नहीं है. चलिए अब नेट प्रॉफिट निकाल दो मुझे. अब मुझे नेट प्रॉफिट निकाल दो. बोलो. So 21, 31, 700. Okay. So 21,32,300. Okay, लिखो. $21,32,300. 21,32,300. 21,32,300. Profit. Because of profit, capital becomes more. 21,32,300. Because of profit, capital becomes more. So इधर आ गया 22 लाख 31,300. Total the balance sheet. कितना है टोटल ऑफ द बैलेंस शीट? 31,08,300. क्या आप बता सकते हैं हमारा प्रॉब्लम हमेशा टैली क्यों होता है? हमारा प्रॉब्लम हमेशा टैली क्यों होता है? ये क्यों खुशी के आंसू से रो रहा है? Why your problem always tallies? बताओ प्रॉब्लम टैली हमेशा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग हमेशा रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 फॉलो करते हैं. क्या है ये रूल नंबर 1 रूल 2? अरे वेरी सिंपल. Those rule number 1, those transaction which come in the opening balance sheet bring down same side. And rule number 2 क्या होता है?
ऑल द रिमेनिंग ट्रांजेक्शन 2 टाइम, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। जो भी ओपनिंग बैलेंस शीट के ट्रांजेक्शन नहीं है 1 डेबिट 1 क्रेडिट। जो अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट के ट्रांजेक्शन नहीं है 1 डेबिट 1 क्रेडिट। देखो पूरा बोर्ड आपके सामने है। ये फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअल बोर्ड पर भी नहीं मिलती है, वहां तो मुझे मिटा देना पड़ता है, पता है आपको। इनफैक्ट कॉलेज में इतना बड़ा बोर्ड भी नहीं होता है कभी कभी। वी हैव अ टफ टाइम देन। वीडियो देखने वाले वीडियो पोस्ट करो, कॉपी करो। हैप्पी एंडिंग है सम का।